Yes, dear students, last time if we try to recall, we discussed lens. Okay, lens. So we can say we discussed lenses. That what is a lens and what are the types of lenses? We discussed that there are two types of lenses which we are discussing in which we are going to discuss in class 10. Double convex lens and double concave lens, or simply we can say that convex lens or concave lens, or we can also say that biconvex lens or biconcave lens. And before that, before that means today we are going to discuss some terms related to lenses. Right? What are the terms related to lenses? Like in mirrors, we discuss aperture, pole, principal axis, and focal. So same terms are related to lenses also we are going to discuss today. But before that, a quick revision. So here I am having a glass slab in my hand. अगर आप थोड़ा सा याद करें, if I ask you that कितने इसमें rays are involved, how many rays? If this is the incident ray of light, अगर हम यहाँ पर incident ray of light ये fall हो रही है इस पर, तो how many rays will be there total? 2 or 3? Yes, there are 3 rays. Incident ray जो अंदर होगा that is diffracted ray, and जो बाहर यहाँ से निकल के आएगा that is emergent ray. तो टोटल हमने 3 रेज के बारे में बात किया था when we were discussing glass slab. Incident ray, refracted ray and emergent ray, right? And what is the relation between the incident angle of incidence and angle of emergence? Yes, these two are equal. Angle of incidence is equal to angle of emergence in case of glass slab. Refraction is taking place in glass slab, हाँ? ये हमने पढ़ा था. तो रिफ्रैक्शन आल्सो टेक प्लेस इन लेंसेज. तो लेंसेज में भी रिफ्रैक्शन होता है. तो दीज आर द टू लेंसेज. कॉन्वेक्स लेंस, थिक, इट इज थिक एट द सेंटर, देन एट द एजेस यहाँ पर मोटा है, ये यहाँ पर पतला है. ये इसका उल्टा है, यहाँ पर पतला है सेंटर पर और एजेस पर ये मोटा है. तो रिफ्रैक्शन इनमें भी हो रहा है. वी डिस्कस रिफ्रैक्शन इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन लेंसेज. एंड हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर? इसमें कितने सरफेस है? 2. Yes, this is one curved surface, another curved surface. Same way concave में भी है, one surface, curved surface, second curved surface, है ना? तो अगर हम बात करें कि how many then curved surfaces are required to make a lens, obviously your answer is 2. But when we were talking about the mirrors, तो mirror को बनाने के लिए कितना curved surface की जरूरत होती है? So when we have to make a mirror, only one curved surface is required. This is the center of holospherical glass ball. और इसको अगर हमने यहाँ से कट कर लिया, yes, so this is a part. If it is polished from outside, then it becomes which mirror? Yes, it becomes concave mirror. अगर हमने second part ले लिया, ये, and it is polished from inside, then we get convex mirror. So this is concave mirror and this is convex mirror. But when we have to make a lens, तो lens बनाने के लिए how many spherical balls are required? So there are 2 curved surfaces. So this means yes, obviously 2 spherical glass balls are required. So to make a lens, 2 hollow spherical glass balls are required. और अगर बात करें तो each glass ball will be having its own center. हर एक का अपना एक सेंटर होगा. तो 2 होलोस्फेरिकल ग्लास बॉल्स हैं, तो कितने सेंटर होंगे इनके? 2 सेंटर होंगे, है ना? एक का सेंटर C1 ले लेंगे, दूसरे का सेंटर C2 ले लेंगे. तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम एंड आफ्टर दैट सम टर्म्स रिलेटेड टू lenses which shall be discussing. So I have made the 2 spheres here. These are 2 holospherical glass balls and you can see how these are kept. So these are overlapped. एक दूसरे को ऊपर रखा हुआ है. Okay, overlapping कर रही है ना? So this portion, you can see this portion of this glass slab. ये देखिए, ये जो portion है, ये overlap कर रहा है इसको, and इस glass holospherical glass ball का ये part जो है, देखिए ये है, ठीक है? So this way, you know, what do we get? Now 2 curved surfaces are there. 2 curved surfaces are there. So which lens is formed here?
convex lens. Yes, it is double convex lens or biconvex lens is formed here. Okay, so here two hollow spherical glass balls are required and each has its one center. इसका center C1 होगा और इसका center क्या होगा? This is C2, right? So this way we can make overlapping करके, है ना? दो spherical glass ball का overlapping हुआ, तो which lens is formed? Convex lens is formed. Same way if we have to make a concave lens, तो concave lens बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? Same way, उसको भी देखिए दो spheres होंगे, तो इसमें भी हमने दो hollow spherical glass balls लिया, okay, spherical glass ball, and इन दोनों को कैसे रखेंगे? Here these were overlapping, but concave lens के केस में क्या होगा? Okay, these will be kept like this. ये इसका C1 हो गया, and दूसरा जो होगा उसको इस तरह से, yes, ये हो गया C1, ये जो पोर्शन आते हैं देखिए, this is, इसका ये वाला पोर्शन लेंगे एंड इसका ये का पोर्शन लेंगे एंड these two are here joined and filled with glass. तो ये देखिए ये हमारा बन गया concave lens. This is concave lens and this is C1 and this is C2 because we are talking about the two spheres. Okay, hollow spherical glass ball. तो एक का सेंटर C1 हो गया, दूसरे का सेंटर हो गया C2 हो गया. So C1 and C2 are the center of curvature क्योंकि ये कर्व है, स्फीयर है, okay, spherical surface है. तो spherical surface का क्या है? सेंटर है. And here same way, it is curved also and it is part of the sphere also. Okay, spherical surface है. So this is a C2 here of this hollow spherical glass ball. So C1 and C2 and same way C1 and C2 are the centers of hollow spherical glass ball of which lens is a part, of which जिसका lens एक part होगा. तो center of curvature, it is the center of the hollow spherical glass ball of which spherical lens, okay, or we can say a lens is a part. तो लेंस के तो दो स्फेरिकल पार्ट होंगे, ठीक है, 1 2 1 2. तो एनी डाउट हियर? नो. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू यस लेंस. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अगर चलो उससे पहले अगर हम बात करें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का सेकंड पार्ट, सेकंड इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इस कर्व का रेडियस कैसे लेंगे? ओके, सो देखिए ये सर्किल है, होलो स्फेरिकल ग्लास बॉल है, तो यहां से कोई भी पॉइंट जो लेंगे उसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, दिस इज द पॉइंट एंड इफ इट इज ज्वाइन हियर, ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेम वे हियर इफ इट इज ज्वाइन फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट होगा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इस कर्व का रेडियस, इस कर्व का रेडियस, ये जो कर्व है, ये कर्व बन रहा है इसका रेडियस, ये जो कर्व बन रहा है इसका रेडियस, तो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, ये तो कितना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? एक होगा, दो होगा? तो दो स्फीयर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कितनी होंगी? इसमें दो होंगी. ठीक है, तो दो सेंटर है तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इनका होगा. यस, आगे चलते हैं. अगर हम इस लाइन को ज्वाइन कर दें, ये C1 और C2 को हम ज्वाइन कर दें, ओके, तो क्या होगा? और इसको अगर हम सीधा ऐसे ज्वाइन कर दें तो क्या होगा? कौन सा पॉइंट आएगा? ओके, तो उसको हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं एंड डायग्राम विल रिमेन सेम. सो इन द मीन टाइम नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. Actually, before proceeding, just revise what is the center of curvature. If you wish, you can write down. इसको लिख लीजिए. The center of curvature is the center of hollow spherical glass ball of which the lens is a part. Of which lens is a part. So here C1 is the center of curvature, and here C2 is also the center of curvature. After the radius of curvature, radius of curvature. The radius of curvature is the radius of hollow spherical glass ball. It is the radius of the hollow spherical glass ball. ठीक है, और it is the radius of the curve here. ये जो curve है इसका radius है ना, यहाँ से इसको measure करेंगे. So here it is suppose this is A and here this is the second one. इसका जो radius है it is here
this is B. So if I ask you what is the relation between CA and C1A and C2B, दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो दोनों बराबर होंगे या डिफरेंट होंगे? तो दोनों क्या होंगे? ये सेम होंगे. तो C1A is equal to C2B, बिकॉज दोनों स्पीयर जो है दोनों का रेडियस सेम है. रेडियस दोनों का सेम है, तो दोनों एक ही साइज के हैं. तो C1A is equal to C2B. Any issue here? No. So after that, now third point. So if you join these two lines, centers, lines नहीं, line तो एक मिलेगा हमें, है ना? तो अगर हम इनको ज्वाइन कर दें, तो this way, if we join this, same way अगर C1 को हम यहाँ से ये ज्वाइन कर दें, तो C1 C2 is joined, C1 C2 is joined. What do we call this line? इस लाइन को क्या कहते हैं? What do we call this? Yes, it is called principal axis. It is called principal axis. So now third point हमारा जो आता है, इसमें third term आता है, that is principal axis. Okay, तो principal axis क्या होगा? It is a straight line. You can see line कैसा है? Straight है. So it is a straight line joining the center of curvatures. Joining two centers of curvatures, है ना? ये जो दो स्पीयर हैं उनके दो सेंटर होंगे, उनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है, स्ट्रेट लाइन, इट इज इमेजिनरी लाइन. इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. एनी प्रॉब्लम हियर? एंड इट इज इमेजिनरी लाइन. एक और इसका नाम याद कर लीजिए, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिकल एक्सिस. In multiple choice questions it can be asked. Okay, so principal axis is also known as optical axis. And optical, you know what means light. Optical axis को कहते हैं, ये भी आपको हम बताएंगे कि what do we call principal axis, also optical axis. Any problem here? No. तो चलिए अब आप करते हैं. तो देखिए ये जो लेंस है, तो लेंस का जो रिफ्रैक्शन होगा, it will take place from this portion to this, same way from this to this side. इस लेंस में रिफ्रैक्शन will take place from here. इससे पूरे से होगा and same way here. तो जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, जितने पोर्शन से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस कर रहा है इन लेंस, तो दिस पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज aperture of the lens. Okay, aperture of the lens. तो when you are using cameras, है ना, जो कैमरा यूज कर रहे हैं, मोबाइल कैमरा की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम जो कैमरास यूज करते हैं उसमें aperture वर्ड यूज होता है. Yes, so you must have been taught this about camera in lower classes. So aperture, or we can say it is a diameter of the lens. ये पूरा यहाँ से लेकर इसका diameter भी है, और it is a refracting surface of the lens. जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, that is refracting surface of the lens. तो नेक्स्ट हमारा आ गया aperture of the lens. So note it down. Now I am going to write down aperture. इसका डेफिनेशन बात करेंगे और इसको लिखेंगे. Then next point. So note it down. So now aperture. तो aperture क्या होगा? देखिए aperture. तो this is the refracting surface. Okay. If it is x यहाँ पर और ये y है, तो x y पूरा यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा. सेम वे अगर ये x है और ये y है, यहाँ पर देखिए, तो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस सरफेस, यहाँ से ऐसे इधर से. ठीक है ये. सो दिस इज द अपर्चर ऑफ द लेंस. सो अपर्चर ऑफ द लेंस क्या है? इट इज द refracting surface of a lens. Okay, it is the refracting surface of the lens, and it is always कैसा होगा? कर्व होता है. इन दोनों लेंस की बात करें तो it is curved here. So this is curved. Again here it is curved. So every ray which is falling on this will be refracted, will change its direction. Okay, so this is called aperture of the lens. So refracting surface. So again we are discussing refraction because lens क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ये रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है. So therefore we call it refracting surface. So how many surfaces are there?
रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ए लेंस हैज टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, है ना। तो 1 2 एंड सेम वे 1 2, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एपर्चर। इनको क्या कहते हैं? एपर्चर। दिस इज एपर्चर एंड दिस इज आल्सो एपर्चर। एंड दोनों का साइज क्या होगा? दोनों तरफ सेम। ओके, दिस इज सेम। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ओके, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल मींस लाइट। अब ये जो लेंस हो गया, तो देखिए हमने बात कर रहा था C1 एंड C2, ये था प्रिंसिपल एक्सिस। C1 C2 ये लाइन जो है इमेजिनरी लाइन, इट इज कॉल्ड ऑप्टिक प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम यहां से देखिए इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, स्ट्रेट लाइन, इट इज डिवाइडिंग द लेंस इनटू टू पार्ट्स, है ना, ये होगा। तो ये जो लेंस का यहां पर ये जो पॉइंट आता है, दिस इज सेंटर ऑफ द लेंस, इट इज डिनोटेड बाय O। सेम वे हम इसको यहां से ज्वाइन करते हैं, देखिए ऐसे लेंस को। तो यहां से जो मेजर करते हैं, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। ये आता है सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस। ये जो लेंस है इसका ऐसे एक्स वाई, इसका जो सेंटर है दिस इज O, रिप्रेजेंटेड बाय O, एंड इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। तो इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो इसमें लिखेंगे हम, इट इज geometrical center of the lens. Geometrical center of the lens, and it is very very important. It has some properties. इसकी कुछ properties होती है. Okay, it has some properties. इसकी properties क्या क्या है? So, any ray of light which is passing through the optical center, it always goes undeviated. हमेशा अनडेविएटेड जाती है ना। तो देखिए यहां पर जो रे ऑफ लाइट है, ये जो सेंटर है, यहां से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इट गोस अनडेविएटेड। सेम वे इफ a ray of light is passing through optical center, it will go undeviated, no refraction will take place, it is falling perpendicularly। और एक छोटी सी बात बताएं कि ये कहा जाता है कि लेंस इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्रिज्म्स, छोटे छोटे प्रिज्म से मिलकर बना होता है। तो सेंटर की बात करें तो सेंटर पर ऑलमोस्ट ये क्या बन जाता है? एक ग्लास स्लैब बन जाता है ना, ग्लास स्लैब बन जाता है। ओके, तो प्रिज्म का प्रिज्म ऐसे होते हैं, तो सेंटर पर आते आते जब प्रिज्म ऐसे रखे जाएंगे उल्टे, तो ये क्या बन जाता है? ग्लास स्लैब। ए रे ऑफ लाइट व्हेन वी नो दैट फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द ग्लास स्लैब क्या जाती है? इट गोस अनडेविएटेड, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। तो इस तरह से यहां से जो रे ऑफ लाइट जा रही है, इट गोस अनडेविएटेड। सेम वे अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस इज थिन, इट इज पास फॉलिंग लाइक दिस, तो इट विल आल्सो गो अनडेविएटेड। इसमें भी कोई चेंज पाथ में नहीं आएगा, नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सेम वे इसके सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो नो रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। सो ये इट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर multiple choice questions. Again I am repeating, a ray of light passing through the optical center of the lens goes undeviated, means no refraction take place. No refraction take place. No refraction when a ray of light is passing through optical center. तो इसको नोट कर लीजिए, साथ साथ लिखते रहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या है? A ray of light passing through optical center goes undeviated. Undeviated means क्या होगा? No refraction. No reflection means no change in path. No change in path of light. Path of light. So note it down. ये important point है यहाँ से. Okay?
तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। एंड अगर हम बात करें कि मिरर्स की, तो मिरर में जो सेंटर होता था मिरर का, उसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पोल। यस, दैट इज कॉल्ड पोल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पोल एंड optical center. In case of lens, it is optical center. In case of mirrors, it is pole of the mirror. Yes, so note it down. After that, next important point, जो कि आपके न्यूमेरिकल में भी हेल्प करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जनरली उसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। फोकस ऑन स्टडीज। ओके, यस, फोकस ऑन दिस पॉइंट। यस, फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। नो, दीज आर इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेट करिए माइंड को, ये बातें की जाती है, ठीक है ना। So we are going to discuss next important point, focus of lens. In the meantime, please note it down. Yes, हो गया। इसके बाद में हम इसको रब करेंगे और नया डायग्राम बनाएंगे। Yes, so done. Okay. So I'm going to rub it. I'm sure that all of you have noted it down. And then new point. Yes, focus. Yes, now I am going to draw the diagram. Side by side, you can also draw the diagrams here in the notebook, and you will learn more, I am sure. Okay. So though you are going to have multiple choice question paper, but this will help you in higher classes also. So here, okay, as I told you earlier that in notebooks lines are there, है ना? Ruled paper को हम use करते हैं लिखने के लिए. So we have to take even number of lines or odd number of lines to draw a lens or a mirror. Yes, it is correct. Odd numbers of lines. So I have taken here 7 number of lines. तो 3 ऊपर होगी, 3 नीचे 6 और बीच वाला हो गया ये 7th line. And this is a straight line. Okay. तो 3 लाइन का ये हो गया, 3 लाइंस का ये डिस्टेंस हो गया. Now first I am going to make this lens. देखिए कौन सा लेंस बन रहा है? हमने सेंटर से थोड़ा दूर इक्वल डिस्टेंस पर ये पॉइंट बना लिए. देन आई एम ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. इनको हमने ज्वाइन किया, देखिए ऐसे धीरे धीरे, एंड ये, एंड सेम वे आई एम ज्वाइनिंग हियर. यस, सो व्हिच लेंस इज देयर? यस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस. इट इज कॉन्वेक्स लेंस. व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? व्हाट डू वी कॉल कॉन्वेक्स लेंस? Yes, converging lens. It is also known as converging lens. Okay. Now same way, now we have to draw the concave lens. तो concave lens में क्या करेंगे? हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है. देखिए हमने लाइन ड्रॉ करा, इक्वल लाइन हियर, दोनों में इक्वल हमने किया, एंड हियर वी हैव टू टेक द पॉइंट्स क्लोज टू दिस एक्सिस, है ना, और हमने इनको जेंटली ज्वाइन किया. देखिए ऐसे, ये देखिए कितना आराम से, कितना सुंदर अपना लेंस बन जाता है. ठीक है, without compass. Yes, so this is concave lens. What is another name of convex lens? Concave lens. It is diverging lens. Yes, you are right, it is diverging lens. तो क्यों कहते हैं diverging lens? ये इस डायग्राम में आपको मिल जाएगा और हम डिस्कस कर भी चुके हैं. तो देखिए अब ये जो है, this point it is known as optical center, and this is the principal axis, है ना. ये जो लाइन है principal axis है. ठीक, तो this is optical center. Now rays of light are coming parallel to the principal axis. इसके ऊपर देखिए parallel rays आ रही हैं. ठीक, ये rays आ रही हैं parallel to each other. अब आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन हमेशा देखिए यहां से सेंटर से लेते हैं. तो जनरली दिस मिस्टेक इज डन बाय द स्टूडेंट. तो ऐसे लाइन ड्रॉ करने के यहां से बेंडिंग शुरू होगा. ठीक, सो ये रेज जो है देखिए यहां पर आएंगी और ऐसे बेंड होकर एक पॉइंट पर मिल जाएंगी. देखिए, तो दिस इज कमिंग टू दिस पॉइंट. ओके, एंड दिस रे इज गोइंग स्ट्रेट. वी हैव डिस्कस्ड बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर. तो देखिए ये जो रेज है एक पॉइंट पर मिल रही है, एंड दिस पॉइंट इज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ये ध्यान देना है आपको. जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड भी आपने मिस करा, सिंसियरिटी जरा सा भी लूज करा, तो 1 मार्क गॉन. बट हमको मार्क्स लूज नहीं करने, है ना.
So this point is on principal axis and what do we call focus. तो देखो दोनों रेज तीनों रेज आकर फोकस हो गई, इसमें मिल रही है। जैसे आपकी जो आपने फोकस किस पे कर रखा है, स्क्रीन पर। तो व्हेन आई एम टीचिंग यू देन योर आईज आर फोकस ऑन द स्क्रीन ऑफ द लैपटॉप और द मोबाइल, उस पर फोकस कर रखा है आपने, आप इधर उधर नहीं देख रहे हैं, है ना। फोकस मीन्स कमिंग एट ए पॉइंट, तो दिस इज द फोकस हियर। तो सेम वे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कैसे होगा, तो देखिए रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर, इसमें भी पैरेलल आ रही है, सेम रेज हमने लिया, ओके सेम रेज, ये तो सीधा जाएगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा यहां से, तो दिस रे विल गो अवे, ओके, तो इट विल नॉट बेंड, इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही है, इसमें से अवे जाएगी, इट विल स्प्रेड। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, तो ये रे ऐसे जाएगा आपका, ओके, एंड इट appears to be coming from a point, यस, इस पॉइंट से आता हुआ लगता है, ठीक। सेम वे यहां से हम इसको ज्वाइन कर देंगे एंड इट इज गोइंग दिस वे। तो हियर यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्स कर रहा है, एक पॉइंट में मिला रहा है, और कॉन्केव लेंस क्या कर रहा है, इट इज डाइवर्जिंग द रेज, फैला रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, बिकॉज ऑफ दिस नेचर, बिकॉज इट इज डाइवर्जिंग, स्प्रेडिंग द रेज ऑफ लाइट, जो पैरेलल थी उनको इसने फैला दिया, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, है ना। एंड ये जो पॉइंट है, ये रेज इस पॉइंट से आती लग रही है, तो दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस, इट इज अगेन ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए कहां पर है, प्रिंसिपल एक्सिस पर है। तो ये याद रखना है कि फोकस इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो वर्ड जब डेफिनेशन आएगा तो उसमें आना चाहिए कि फोकस कहां होता है, इट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो नाउ इट्स डेफिनेशन, फोकस, focus, it is the point on principal axis, it's the point on the principal axis, yes, where rays of light, rays of light after refraction, after refraction actually meet in case of convex lens, or appear to be coming in case of concave lens, actually meet in case of कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम नीचे लिख दें, और appear to be coming, okay, in case of concave lens, appear to be coming, so देखिए it is the point on the principal axis। तो ये याद करना है, principal axis where rays of light after reflection actually meet or appear to be coming, so this is important, you have to remember। अब बात करें तो देखिए कितने सरफेसेस, इसमें कितने कर्व सरफेसेस हैं, दो, एक कर्व सरफेस ये है, दूसरा कर्व सरफेस ये है, सेम वे वन कर्व सरफेस, सेकंड कर्व सरफेस, ठीक है। तो इसमें कितने फोकस होने चाहिए, एक होना चाहिए या दो होना चाहिए, सर इसमें यस दो होने चाहिए, है ना। तो इसमें प्रिंसिपल फोकस ये हो गया हमारे डेफिनेशन, उसके बाद फोकस कितना होना चाहिए, दो। तो एक होता है फोकस, एक को क्या कहेंगे, यस क्या कहेंगे इसको, एनी वन ऑफ यू, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड दूसरे को हम कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो देयर आर टू फोकस होंगे जिसको फोसाई कहते हैं, FOCI, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड देन सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसको आपने श्योर है कि नोट कर लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट, ओके। मेयर ऑफ द डेफिनेशन नाउ, ओके।
चलिए, before discussing first focus and second focus, one point is left. Focal length. Yes, it is focal length. देखिए focal length इसको कैसे measure करेंगे? Focal length which is represented by small m. This we have done when we were discussing mirrors. तो देखिए इसमें optical center है and this is the focus focus point. Okay, focal point f. So ये जो distance होगा, the distance between optical center and focus is known as focal length. And उसमें क्या था? P f और इसमें है OL. मिरर में PF OL होता है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर. तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से देखिए ये जो डिस्टेंस है, तो दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ f. तो सेम वे हियर ये जो ऑप्टिकल सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड f. तो फोकल लेंथ इट इज अ डिस्टेंस. ओके, कैसा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस between optical center and focus. So it is the distance between optical center and focus of lens. Okay, it is the distance between optical center and focus of the lens represented by small f. एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेते हैं. Out of these two, which lens has real focus? इसमें से real focus किसका है? Yes, real focus is of concave or convex? Yes, convex. तो convex lens has real focus. इसमें आप नोट करने के लिए इस पॉइंट लिख लीजिए कि convex lens has real focus. This is also important for coming question paper. Okay, coming exam. Convex lens has real focus and concave lens has virtual focus. ओके, तो ये वर्चुअल फोकस होगा कॉन्केव में, क्योंकि रेज ऑफ लाइट appear to be coming from a point, तो इसलिए वर्चुअल होगा. इसमें एक्चुअली मीटिंग, तो दिस इज रियल फोकस. ओके, दिस इज कॉल्ड रियल फोकस एंड वी कॉल इट पॉजिटिव लेंस आल्सो. इसको पॉजिटिव लेंस भी कहते हैं क्योंकि फोकस रेज ऑफ लाइट की जो डायरेक्शन है उसी की तरफ बनता है ना. इसको हम कहते हैं, यस, ये नेगेटिव में रहेगा. क्यों? अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे. तो एनी प्रॉब्लम हियर? नोट इट डाउन. नाउ फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस वी आर गोइंग टू डिस्कस. यस, नोट इट डाउन. ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा. ओके, डन. चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट रब इट एंड देन नेक्स्ट पॉइंट. सो नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय f1. So it is first, so therefore it is represented by f1. तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ये होगा हमारे लेफ्ट साइड. और इसमें देखिए रे ऑफ लाइट जो है, अगर हम यहाँ एक पॉइंट ले रहे हैं, दिस इज द पॉइंट हियर. ओके, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट रेज आर फॉलिंग ऑन द लेंस. इसके ऊपर ये रेज ऑफ लाइट आई. सेम वे देखिए यहाँ पर आएंगी रेज ऑफ लाइट. तो आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन टू दिस रेज ऑफ लाइट? These rays of light after refraction, after passing through the lens, will go parallel. तो ये parallel जाएंगी. तो these rays of light will go parallel to principal axis, है ना. ये principal axis के parallel जाएंगी ये rays. तो ये जो point है on the principal axis, it is known as first principal focus. तो first principal focus is the point on the principal axis from where when a source of light is kept and rays of light starting from source of light will go parallel to each other after passing through the lens or after reflection from the lens. Okay, any problem here? So here source of light is kept and rays of light are starting and going parallel to each other. Okay, and these are parallel to principal axis also. No? So this is called first principal focus. Now in case of this lens, इसमें क्या होगा? Okay, तो देखिए rays of light इसमें ऐसे आ रही है. तो these rays of light are coming to this lens. Same way
हियर इट इज कमिंग, यहां पर आ गया। अब रेज ऑफ लाइट दीज अपियर टू बी कमिंग आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि यहां आएंगे मिलेंगे, ठीक है, यस, ओके। अब ये क्या है देखिए, अब यहां से क्या होगा रिफ्रैक्शन के बाद, ये क्या है, यहां से जाएंगे ये पैरेलल, दिस विल गो एक्चुअली पैरेलल टू ईच अदर बट appear to meet at this point, appear to meet at this point. तो here it is F1, ये इसका F1 होगा। तो देखिए ये rays of light है, these are going parallel to principal axis and appear to be meeting at a point on principal axis here. So this point is principal focus 1. So ये first principal focus and here it is first principal focus. You can see it is on left side and here it is on right side. This difference you have to understand. Okay, in convex lens, first principal axis of source of light is placed here. It is on left, and here it is on right. So we have discussed here first principal focal. And same way जो difference होगा इनके बीच में जो distance होगा, so this is focal length. Okay, focal length, and here also यहां से जो होगा this is small f. This is focal length. Okay? Any problem here? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ एंड दिस इज द सेकंड फोकल, ओके, इसके केस में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सो नोट इट डाउन, डन। डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज अ पॉइंट on the principal axis from where the rays of light after passing through the lens or after refraction are going parallel to each other or parallel to principal axis. Okay, so now second principal focus. Now second principal focus. तो second principal focus, अब first वाला इधर था देखिए, है ना, इसमें first इधर था, तो second इसमें कैसे होगा ना, तो second principal focus में क्या होगा, rays of light parallel लेंगे। So these are the rays of light here, rays of light. After refraction क्या होगा? These will meet at a point. ये यहाँ पर मिलेंगी और ये यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? ये थोड़ा सा yes यहाँ मिलेंगे, no? And this point is known as focus, F. इसको हम कहेंगे कि F, focus, or we can say here it is the yes second principal focus. So you can see rays of light parallel to principal axis after refraction are meeting at a point on principal axis of the lens. Principal axis of the lens. So this is called second principal focus. And same way here the distance, ये जो इनके बीच का distance होगा, this is called focal length. Okay, so this is the second focal length यहाँ पर आ जाएगा. Okay, second focal length. तो आगे इसकी बात करें तो ऐसे इसमें देखा rays of light parallel लेंगे हम. ओके, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ गई, यस, एंड आफ्टर दैट क्या होगा, अभी हमने किया था, ये डाइवर्स करेगा इसको, ये अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, यस, हियर, और हमने इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, दिस रे, यस, गोइंग दिस। तो ये जो देखिए यहां पर जो पॉइंट आ गया प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस सेकंड फोकस इज आल्सो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। So this is known as second principal focus. Second principal focus. So you can see here second principal focus is on right side and here it is on left side. So this is the difference. And same way अगर यहाँ से हम measure करें optical center से, तो this is called second focal length. Principal focal length. Any doubt? Yes? ओके, नो डाउट, तो इसको नोट कर लें। ओके, नाउ एक क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन, अगर हमने किया था पहले फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, नाउ सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इन बोथ केसेस व्हाट इज द रिलेशन, क्या ये इससे ज्यादा होगा
या क्या इससे कम होगा या इक्वल होगा? यस, एनी वन ऑफ यू? यस, तो दीज टू आर ऑलवेज इक्वल. F1 is always equal to F2. So first principal focal length is always equal to the second principal focal length. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा OF2 और इधर OF1 होगा, दोनों हमेशा सेम होते हैं. सेम वे OF2 एंड हियर OF1 दोनों हमेशा सेम होते हैं. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर द कमिंग एग्जाम. एनी डाउट हियर? यस? Okay, no. So today till now up to this only. Next time थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे और उसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन साइन, कैसे कैसे इसको साइन होते हैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, एंड हाउ टू मेक इमेज यूजिंग lenses. Okay, thank you, all the best.